showing that using word, yoast or right man. So using yoast, ठीक है? Right man हम यूज करते हैं. Come to the word.text file. What is it? Can search engine use page to call, for example, disallow and very important to prevent indexing and pages. इसको देखते हैं क्या चीज़ है. Let's see where we can find it. आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ प्लगइन. report.text file. ये क्या करती है आपकी टेक्निकल स्क्रीन में आपको अलाउ करती है आपके गूगल क्रॉलर में कौन से पेज में क्रॉल करना है कौन सा नहीं करना है. Once you are on your Yoast plugin, you click on tools. Yoast plugin, click on tools. ठीक है? Tools पे जब क्लिक करेंगे, you take these tools and then just click on file editor. After that, you have to click on file editor. Click on that. Then it will show you the report.text file and some other files. Just leave other ones. See this report.text file. Start Yoast block के द्वारा user agent spelling in all. ठीक है? Disallow none. Site का लगा हुआ. That's all. Means के तमाम pages आपके पास जितने भी हैं उन सबको ये allow कर रहा है crawl करने के लिए. ठीक है? अगर आपने यहाँ पे कोई पेज जिस को crawl नहीं करवाना, you can put the link here of that page. ठीक है? यहाँ पे लिंक कैसे लेंगे? कॉपी करेंगे यहाँ से. सपोज आपके पास like this. Suppose if you don't want to Google to crawl this project page, you just copy the link like this from the browser. Go back to this allow here, space देके you can just get that paste. ठीक है? Like that simple. वो वाला link crawl नहीं करेगा. Understand? It's very easy. ये normally use होता है. सिर्फ होना चाहिए आपके पास लगा हुआ कि Google को पता हो Google क्या crawl कर रहा है आपके पास. That's all. Nothing else. ठीक है? और उसके बाद next था broken link. Yeah, broken link created. Create that user experience. For example, you always get 404. ये क्या होता है? ये क्या होता है? When you create a page and you delete by mistake, ठीक है? तो होता क्या है? तो पेज उसके डेटाबेस में रहता है, उसकी वजह से एरर शो करता है 404. उसके लिए हमें क्या करना है?
किसी को आइडिया? Which I should. You need to just install a plugin. Okay, go to plugin, add new plugin, and we'll just type here 404 like that. Give you this. क्या लिखा हुआ है? Automatically redirect 404 errors to the right page using 7 individuals के पास ये भी है और ये भी जो आपको सूट करता है, जो आपको समझ में आपके लिए बेहतर है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसको सिंपली आप इंस्टॉल करें। एक्टिवेट, and then see where is the plugin now. Tools, here's yeah, 404 settings. Click on this. It's showing you automatically redirect similar page recommended. ठीक है, that's fine. Just click save and get started. तो कोई भी आपका पेज ब्रोकन पेज है, उसको फाइंड आउट करके उसको redirect करने का उसी तरह के सिमिलर पेज के साथ। अक्सर आपने कभी महसूस किया आई डोंट नो, लेकिन जब कभी आप किसी वेबसाइट को अप्रोच करते हैं तो क्या होता है, लिंक करके किसी का ब्रोकन है उसको शो करता है रीडायरेक्टिंग, वो ये चीज़ होती है रीडायरेक्टिंग। ठीक है, ऑलराइट, ये पता लग गया आपको। उसके बाद क्रोलेबिलिटी एंड इंडेक्सिंग ये हमने कर लिया था। हमने अपना लास्ट विंडोज सर्विस सर्वर पर अपनी साइट को रजिस्टर कर लिया। ओके, Now, is the difference between on-page and SEO and technical SEO? क्या कुछ करते हैं on-page में? आप क्या करते हैं? Works on content, focus on keywords, improves readability, includes title, heading, and user focus. Technical में क्या करते हैं? Works on website system, focus on performance, improves crawlability, improves speed and security, and search engine focus. ये सारे अगर आप टास्क कंप्लीट कर लें अपनी वेबसाइट को, there is no way कि आप ये कहेंगे अपनी साइट रैंक नहीं कर रहे, no, it will rank automatically. ठीक है? बाकी आपको पता है क्या काम किया था, सर एग्जांपल्स हैं ऑन पेज एसईओ में क्या किया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का प्रोडक्ट सर जिससे प्रीवियस वाला पॉइंट आपने उसको दोबारा पे कर दिया, उसको हमने क्यों करना है? मतलब कौन सा? इससे किससे पहले बात ये सर्च कंसोल नहीं, इससे पहले जो आपने ये लिंक शेयर करके दिखाया ना हमने, ये वाला ग्लोबल लिंक चाहिए, ग्लोबल लिंक या ये देखिए वेरी ट्रेंड वेबसाइट्स को, ये हमारे पास वेबसाइट है देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसके पेजेस होता क्या है कि वेरी क्रिएट अ पेज, ठीक है, आपको पेज पसंद नहीं आया, उसको भी मिस्टेक आ गई, आपने इसको यहाँ से डिलीट करके ट्रैश में कर दिया, बट लेकिन उसके डेटाबेस में वो रहता है। ठीक है, डेटाबेस में जब गूगल का क्रॉल आता है उसको क्रॉल करके देखते हैं यहाँ पे कोई पेज था, उसका लिंक कॉपी करके ले जाता है। ठीक है, and then somebody tries to approach that page, वो शो करेगा error 404, error 404। अक्सर देखा होगा आपको, ऐसा होता है 404 का error आता है। ठीक है, तो ये वाला जो प्लगइन है उसको ट्रेस करके कि कौन सा आपका पेज डिलीट हो चुका है बाय मिस्टेक, उसको उसी तरह के सिमिलर पेज से रिडायरेक्ट करते हैं ताकि आपका जो 404 का एरर है, कोई अगर आपका यूजर एरर उसको आएगा 404 का, वो क्या होगा, माउस कर देगा, छोड़ देगा, ये टू रिटेन यूजर। ठीक है, ओके, हम अब ये तो अब सब कुछ कर लिया, ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। ऑल इमेज ये भी हमने देख लिया था। इम्प्रूव टेक्निकल में मेक साइट फास्ट, वो यूज मोबाइल फ्रेंडली थीम, इंस्टॉल, ये सब हमने कर लिया। ठीक है, सबमिट वेबसाइट गूगल ये भी हमने कर लिया था। अब हमारे पास कौन सा प्लगइन है, वर्किंग जोस्ट। उसके बाद हम जब जोश पर काम कर लेंगे विल कम टू ऑल इन वन एसईओ। ठीक है, हम रैंक मार्क्स यूज नहीं करते। ओके, एंड देन दिस हेल्प ऑफ व्हाट डज इट डू, इट हेल्प्स इन टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, साइट मैप एंड एसईओ स्कोरिंग। ठीक है ना, एंड tips are there here, write forward first, use simple language, add keyword naturally, use headings properly, optimize images, make website fast, create original content, keep learning and updating content. ठीक है, final simple definition क्या है, on page SEO improve the content and structure inside your pages, and technical SEO does what? It improves the technical setup of the website so search engines can properly access and rank it. Alright, ये हमारा प्रोजेक्ट एनीवे हमने कर लिया। अभी बताइए कि जब आपको जो टास्क दिया था किस किस ने कंप्लीट किया, तो सी किसने किया किसने नहीं किया।
अदिल आपने किया? अदिल आपने किया? आपने जो प्लगइन इंस्टॉल किया मैंने कहा था क्लास से पहले वेबसाइट है आपकी साइट ठीक है आपने आई थिंक यू डिड सम बट लेट्स सी come to plugins here add new plugins always you should use this plugin for classic layout ये वाला classic layout ठीक है सब लाजमी आपको सब देखिए अगर आपने फोकस की प्रेस किया कर जस्ट एडवांस ठीक है व्हिच इज नॉट ओके एंड स्किल का चलो ठीक है मेटा भी ठीक होगी लेकिन आपका कीवर्ड ठीक नहीं है सही व्हाट इज एजुकेशन उसकी फिर आपका ठीक नहीं है उसके बाद if you come to SEO analysis you have to try out more links keep it in section use keyphrase keep it in second आप उसकी नाम से की बाकी से keep it in English order keep it in SEO तो ये आप फिक्स कीजिए किसकी साइट पे किसने किया आप योस फॉर पर डिस्क्रिप्शन तक है इससे आगे आपने कहा था कि ये बात ठीक है कुछ भी डिस्क्रिप्शन तक डाल अच्छा देखिए प्लीज ये आपने फोटोज की फिर आपने लेकर स्टाइलिश शॉट कुछ बन लेगी टाइटल ठीक नहीं है डिस्क्रिप्शन भी ठीक फोकस की फ्रेज इट्स आउट
Spanish also. Gemini और ठीक ये करें प्लस फिर पहले इसको करते हैं ठीक है तो आगे स्टाइलिश let's say attitude not in Pakistan. Your shop is not in Pakistan. Your shop is somewhere traveling in the whole. इधर आप इसको ब्लैक कर ठीक है अपडेट अच्छा ये तो हो गया ठीक है अब हम आते हैं एनालिसिस पे देखते हैं क्या लिखा है नाम फिर एक्सटेंशन है अभी बार ऑन में पता नहीं हुआ है ठीक है ये बता रहा है आउटबाउंड लिंक्स नो आउटबाउंड लिंक्स अपीयर इन दिस पेज ऐड सब की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन इस पे हम काम करेंगे सबसे लास्ट में की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन इस पे आते हैं जो की फ्रेज और सिनोनिम डू नॉट अपीयर इन दिस फर्स्ट पैराग्राफ अब ये कौन सा है सी देखिए इनका मेन पेज है ठीक है इसको पूरा करते हैं इसको क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंटर क्या दिखा रहा है हमें क्या करना है हमें की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन देखिए ये तो आपका टाइटल है बट स्टिल इज स्मॉल इसके बाद ये आपका पैराग्राफ ठीक है अब हम इसको ग्रीन ड्रेस देखिए ग्रीन ड्रेस आपकी शॉप का नेम है वो आपने यहाँ पे लगा दिया दैट्स ओके नाउ वी नीड टू कीप हेडिंग विद द कीवर्ड हियर फर्स्ट ठीक है H1 with the keyword. Let's say if I use this heading here, publish it. Then I go back and see if it is working. Just refresh the page. Still, no, means some masla hal nahi hua. What we do,
सी यहाँ पे क्या हमारे पास एडिंग टी दिस शुड नॉट बी एडिंग टी लाइक दिस, दिस शुड बी पैराग्राफ, ये वाला, ठीक है। एंड स्टाइल समटाइम, लेकिन ये बात बहुत गलत बात है। यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे जब आपसे ये बोला कि there is no key phrase in introduction, means कि यहाँ पे जो फर्स्ट इसका पैराग्राफ है या फर्स्ट हेडिंग है इसको कीवर्ड दिखाई नहीं दे रहा, it's not getting the keyword from your page, ठीक है। आप क्या करेंगे, let's see this plus sign, ये देखो add element, click on this, scroll down and see where you can text editor. You grab it from here and drop it here on top of stylish. Very simple. ठीक हो गया? समझ में आया हमने क्या किया? ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन नेम मिलेगा। Your key phrase or its synonyms do not appear in the first paragraph. कहाँ पे? First paragraph ये देखिए ये क्या है? Heading है और ये इसका next paragraph। इसको यहाँ पे कीवर्ड नहीं मिला, ठीक है? अच्छा, अब क्या करना है मुझे कि हालांकि मैंने यहाँ पे कीवर्ड लगा दिया, but still it's not finding it. इस प्लस साइन पर क्लिक करूँगा और I take this text editor, I grab it and I drop it, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, I will give a new heading or just a short paragraph, not heading, sorry, a paragraph with a key phrase, okay? Let's see. Go and copy and paste it there. ठीक हो गया? कर दिया मैंने, you've seen it. इसको जब आप थोड़ा स्टाइल दे रहे हैं, थोड़ा इसको लाइट bigger और इसका कलर चेंज कर सकते हैं, रेड और ब्लैक में make it different, ठीक है? Then click publish. अच्छा, हम वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं इसने पिक किया है। Yes, it is picked. ठीक है? It has picked. ये एक हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया कि वो कीवर्ड नहीं पिक करता फ्रॉम द हेडिंग और फ्रॉम द पैराग्राफ। हमने एक और पैराग्राफ लगा दिया, नया पैराग्राफ, ठीक है? और देखिए दोबारा से उल्फत, देखिए बहुत से देखिए तो हमने क्या किया, ये इसकी फर्स्ट हेडिंग है, तो इस हेडिंग के अंदर आपका की फ्रेज लगा हुआ है, मगर वो उसको नहीं पिक करता, ठीक है? अब हमने क्या किया, हमने एक नया वहाँ पे एलिमेंट लगा दिया, पैराग्राफ, इसके लिए हमने की फ्रेज लगा दिया विद शेप ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक हो गया? गॉट इट? ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि एक्सपेरिमेंट वे ऑफ प्लान, ठीक है ना? ये तब करते हैं जब वो पिक नहीं कर रहा होता, समटाइम पिक कर लेते हैं, समटाइम वेट करता है, लेकिन हमने कर लिया, नाउ इट इज ओके, नाउ ठीक है, चला गया यहाँ से। अब सेकंड क्या आ गया, की फ्रेज इन सब हेडिंग। सब हेडिंग कौन सी होती है? बता रहे H2 and H3। H2 and H3 यहाँ पे नहीं आपने लगानी, H2 and H3 आएगी यहाँ पे, लेट्स से इस लेटेस्ट कलेक्शन आ गया,
ये हो सकती है, could be somewhere here, this here or here, ठीक है ना, like that. Let's see, मैं देखते हैं ये इस पे क्या लगा हुआ है, ये कौन सी H6 लगा हुआ है, या it's not good even. यहाँ पे H1 के बाद आनी चाहिए H2, ये H2 होनी चाहिए लेटेस्ट कलेक्शन. हम इसको करते हैं H2, ठीक है, and then we can give it a keyword. Let's see, I use ChatGPT to latest use this keyword in latest collection. ठीक है, let's see. No, it's too big. ये देखिए, I copy this one, take it there, and I paste it like that. Because now I'm optimizing the content. Okay, modifying and optimizing the content. क्या headings, ठीक है. अब इसको आप साइज दे दें. अब ये याद रखिए, जो आपने साइज दिया था ना H2 को, हर जगह पे H2 का साइज सेम होना चाहिए. Is okay here. Okay. Okay. I publish it. Come back, refresh the page. Saying use more. अब हमें H3 में भी लगाना है, एक तो लग गया. H3 कहाँ पे? Let's see. हम इसको खुद ही जनरेट कर लेंगे. यहाँ पे ले आते हैं. Just log एक बात याद रखिएगा, इसकी होती है ना हायरार्की. H1 से H6 तक need to maintain. Without that आप कैसे ठीक नहीं होगा. यहाँ पे कौन सी H2 कहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे let's see, you can just put it here. अच्छा, ये भी देख लें आप, how to add a new container जहाँ पे आपका वेरिएबल आ गया. ये देखिए, आप प्लस का साइन देखिए, प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे तो शो यू अगेन क्या करना चाहते हैं आप. क्लिक अगेन ऑन प्लस to show you which layout, this layout. Choose always text box and this. ठीक है. अब यहाँ पे आपने क्या लगाना है, heading. Click on plus element and type here heading. ये heading की के नाम से निकाला है. Copy कीजिए, drag कीजिए यहाँ पे drop. यार अब यहाँ पे आपने H3 की सब heading. Let's say I can take this one. Just like that, ठीक है. बाकी को यहाँ पेस्ट करेंगे, like that, ठीक है. इसको मैंने कर दिया H3. टैग है, इससे टैग HTML टैग, ठीक है. और इसका साइज थोड़ा छोटा कर दूँगा क्योंकि like that. अच्छा, should be in the middle like this. It's up to you. Publish and go back and see and if it is adopted or not. Still get a थोड़ा सा और ऐड करें क्योंकि पेज बड़ा है ना, तो आपने एटलीस्ट 1H2 2H3s आपने एक और ऐड कर दिया, ठीक है. कोई समझता नहीं. यहाँ बता रहा है टेक्स्ट लेंथ है आपका, टेक्स्ट लेंथ 144 वर्ड्स है. यू नीड टू इंक्रीज मोर टेक्स्ट मीन्स कि आपके पेज में टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, ठीक है ना. टेक्स्ट जो पैराग्राफ का सब टेक्स्ट ये जो लिखा हुआ है ये बहुत कम लगा. नीड टू ऐड सम मोर टेक्स्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, वो आपने ऐड किया, ठीक है. अभी मैं आपको छोड़ दूँगा, आपको करना
ठीक है, एंड फिर आ गया की फिर और निम आ गया, गिव फ्यू मिनट्स तो पॉज करो। कंप्लीट में 4 से 5 मतलब होता है, जो हमारे पास पहले कहता है उस लेंथ के मुताबिक ओनली 4 टाइम, आपका कहता है 6 दफ़ा आ चुका है, दैट इज ओवर ऑप्टिमाइज होता है, ये भी जिसे ठीक है। तो हम उसमें देखो ये जो हमारे पास हेडिंग है जो भी पैराग्राफ है जहाँ पे हमने कीफ्रेज लगा दिया उसको वहाँ से निकाल देंगे, ठीक है ना। ये साथ में दिखाया कहता है डोंट ओवर ऑप्टिमाइज, ये की बात डोंट थिंक कि अगर आपके पास कीवर्ड ज़्यादा लग गए तो आपका पेज ऑप्टिमाइज नहीं, इस समटाइम इट गिव्स यू लो रैंकिंग। अभी तो देखिए मैं ऐसे ले रहा हूँ रैंडमली, बट इट इज स्टिल कंसर्निंग विद द पेज, पेज के मुताबिक है, मगर इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द देखिए आप कर 6 टाइम ना कि 5 टाइम, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करके कौन सी जगह पे इसको निकाल देंगे हम। अब आते हैं फिर हम काम करते हैं इसके ऊपर आउटबाउंड लिंक के ऊपर, लेट्स से क्योंकि बड़े वो से देखिए आउटबाउंड लिंक क्या चीज़ है। आउटबाउंड लिंक आपकी वेबसाइट पे ऐसी इंफॉर्मेशन कि जो आपका यूज़र है वो आया आपके पेज पे और उसको इंफॉर्मेशन चाहिए एक्स्ट्रा, तो आपने किसी भी जगह से जो चीज़ ली हुई है, कोई भी अपना आर्टिकल लिया और कोई अपने प्रोडक्ट लिए हुए, आप उसको वहाँ का लिंक दे। इफ यू वांट टू रीड मोर क्लिक हियर, यू विल गो और शी विल गो ऑन दैट लिंक, ठीक है ना। तो वो लिंक क्या कहलाता है, आउटबाउंड लिंक, ठीक है। वो देखने में कैसे लेट्स सी देखने बस ये योस वाली साइट है, सपोज फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बट आपको निकाल देता हूँ साइट फॉर लेडीज ड्रेस साइट निकालते हैं, ऐसे हम इसको लेते हैं 30, ठीक है। हम ये लेते हैं सपोज लेट्स से आपने ठीक है, आपने कुछ इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पर अपनी साइट पर लगा दी है, आपने यहाँ का लिंक कॉपी कर लिया इसका इस, ठीक है, इस पेज का या मे भी आप ले लें ब्लॉग का, ये जो इसके पास स्टाइल ठीक है। ये बात सपोज आपने कॉपी कर लिया यहाँ से। ना यू वांट टू टेल योर कस्टमर के वहाँ जाकर रीड कर। अब ये देखिए पैराग्राफ लेट्स से हम इस पे आते हैं, इस पे लेफ्ट मेन्यू पे यहाँ पे शो कर रखता है जैसे अपील फॉर एवरी ओकेजन, यू जस्ट हाईलाइट एवरी ओकेजन देन क्लिक ऑन दिस लिंक, this chain link here, click on this, it will show you and then paste the link as it is, paste हो गया यहाँ पे, click on this icon, apply, done। अब आपका लिंक लग गया, देखिए यहाँ पे लिंक इसमें हाईलाइटेड ना हो, ठीक है, आपका लिंक लग गया। पब्लिश करें इसको और चेक करें कि ये वैलिड है कि नहीं। अच्छा ये देखिए इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आपका आउटबाउंड लिंक लग गया इतना, ठीक है। समझ आया मतलब क्या है, इजी कि आपने अपने रीडर को अपने यूजर को डाइवर्ट कर दिया इस तरफ कि हमने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी है, if you want to read more go there,
क्लिक करेगा बैक करेगा। अच्छा अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके दो फायदे हैं। क्या होगा मैंने बताया शुरू यार इससे देखिए, एक तो ये लिंक लग गया उस साइट का जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन ली हुई है, उनको मिल गया बैक लिंक, आपको मिल गया आउटबाउंड लिंक, दोनों को फायदा होगा। यहाँ पे आप जैसे कस्टमर को लेकर जाना चाहते हैं उस जगह का अगर यहाँ पे लिंक लगा दें तो कस्टमर डायरेक्टली मतलब उस वेबसाइट पे या उस पेज पे चला जाएगा, मतलब जहाँ आप लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी मोर इन्फॉर्मेशन ये हो गया। अच्छा अब रह गया कीवर्ड टेस्ट की, मैं आपको छोड़ता हूँ और की फ्रेज सब हेडिंग ये यहाँ से आपने H3 और ऐड करके उसमें की फ्रेज लगा देना और उसके बाद की फ्रेज इन इमेज और एट्रीब्यूट। अब इमेजेस कौन से इस पे लगेंगे? देखिए इस पे सबसे पहले इमेज कौन सा लगा होगा? ये लगा होगा जो ठीक है ये बड़ा इमेज इसकी इसका और फिर ये सारे और ये भी जो ये भी जितने भी इमेज आपके फ्रंट पेज पे हैं सबके ऑल एट्रीब्यूट्स काम पे जाकर लगाने पता नहीं पता। Come on your admin panel, click on media, all media. देखिए ये library, click on this. ये आपका सारा media, ठीक है? अब जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, let's say ये भी इसका ऑल्ट आपने लगाया। अच्छा ऑल्ट में देखें आपके ऑल्ट में आपने की फ्रेज भी एम्बेड करना। की फ्रेज या उसका सिमिलर वर्ड्स बनाने लाजमी, ठीक है? सही है? ये हो गया। इसके बाद लेट्स से ये वाला आपने लगाया तो हुआ है लेकिन कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है कहीं पे, ठीक है? देखिए कहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, टू चेक थॉरली, ठीक है? ये नहीं आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, मुझे वर्किंग ऑन योर ऑल, ठीक है? और आप देख लीजिए आपने लगाए हैं वही सबको ही लगा हुआ कहीं ना कुछ चीज़ मिसिंग है। लेट्स से आपका जो लोगो है वो भी लगा हुआ है बट आपका की फ्रेज नहीं है। आई थिंक दैट्स द रीजन। आप उसको जाके देखिए एंड देन लेट मी नो, फिर उस पर काम करेंगे। अगर ना हो तो फाइंड आउट करेंगे क्या वजह है। सो वी कम बैक अगेन हियर एंड सी व्हाट्स द मीनिंग। ठीक है बाकी सब कुछ हो चुका है, ठीक है? तो ये तीन प्रोजेक्ट आपने करना। अच्छा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने वेबसाइट का नाम चेंज नहीं किया। अच्छा अब हम आते हैं स्क्रीन में। आप देखिए ऑन योर dashboard and then dashboard come to appearance and then there is the list showing menu here. Click on that. ये देखिए दिखा रहा है आपको add menu items. You can add all your pages or links to the menu and then here showing select a menu to edit. कौन सी menu चाहिए आपको? Footer menu है, info menu, footer, primary menu and section menu.
लेट्स से वी टेक प्राइमरी जो आपकी मेन पेज पे शो करती है। देखिए ये वाली मेन्यू आपके कहाँ शो कर रही है, मेन पेज पे और ऑल अदर पेजेस पे। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा पेज नहीं है, अबाउट अस पर। टेक दिस अबाउट अस, चेक इट एंड और कौन सा पेज नहीं है, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। क्लिक ऑन दिस टू, क्लिक ऑन ऐड टू मेन्यू, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट ड्रैग इट सिंपली अबाउट अस पेज, टेक इट अप, ये देखिए आप इसको ऊपर ला सकते हैं यहाँ से इस तरह से। अच्छा अब देखिए ये जो दिखा रहा है ना आप इस तरह से, ये थोड़ा पीछे है, ये थोड़ा आगे, इसका मतलब क्या है, ये मेन लिस्ट है मेन्यू की और ये सब आइटम, ठीक है ना। इसको हम मेन बना सकते हैं, अबाउट अस कैन नेवर बी सब आइटम, ठीक है। इसको आप ऊपर ले जाइए, अब ये नीचे आ गया। अब इन सबको बारी बारी सब ठीक करते हैं एज द वे यू वांट, ठीक है। समटाइम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, ये देखिए आगे 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 आगे, ठीक है। अब ये सब पेज खत्म हो गया, नॉट इज मेन, ठीक है। लेट्स सिग्नल्स को सेव किया आपने एंड see your page here. ये देखिए सारा as it is. अब इसको you need to arrange everything. ये आपको ये लोगो बहुत बड़ा है यहाँ पे, इस टू big है, इसको आप एडजस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगी। पर मेन्यू में जैसे अभी अबाउट का पेज है, शॉप का कैटेगरी, एक्सेसरीज है, बटन्स है, you don't need this thing, you don't need buttons, tops, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। कलेक्शन हम इसको निकाल देते हैं। सपोज मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ ये बटन है, क्लिक ऑन इट ऑन दिस एरो एंड देन क्लिक ऑन रिमूव, रिमूव हो गया एंड सेव इट। तो ये आपका मेन्यू इस तरह से एडिट हो सकता है। कोई पेज आपने ऐड करने, ऑल पेजेस आर हियर, व्यू ऑल, सर्च करें कौन सा, ये यहाँ से आप इसको चेक करें और ऐड टू मेन्यू कर दें। फिर उसके बाद सपोज इफ यू नीड कस्टमाइज, वो क्या होगा, ये लिखा हुआ कस्टम लिंक, क्या आपको ऐसा लिंक है, अब वो हम शो नहीं कर रहा, लिंक यहाँ पर पेस्ट करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, लेट्स आप लिखेंगे माय पेज लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे लगा दे लिंक को, ये ऐड टू मेन्यू, देखिए यहाँ पे आप माय पेज के नाम से, ठीक है। इसको आप ले जाएं, लेकिन लिंक आप बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक ऑन दिस एरो साइन एंड देन यू कैन ऐड एनी लिंक हियर, इट विल अपीयर ऑन योर मेन्यू। सेव कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, वेरी इजी, ड्रैग एंड ड्रॉप इसका सारा स्ट्रक्चर है। तो ये मेन थी, मैंने बता दिया। अब किसी का सवाल है, किसी को समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दूँ, बताइए। यहाँ तक आए कहाँ से, वो रिपीट करते हैं। यहाँ आए कहाँ से, मैंने कि ऑन योर लेफ्ट मेन्यू आपका जो एडमिन पैनल है, ये एडमिन पैनल, ठीक है। इस पर जब आते हैं लेफ्ट मेन्यू, देखिए हमें दिखा रहा है आपको क्या, अपीयरेंस, अपीयरेंस पे आएंगे दिखा रहा मेन्यू, देखिए यहाँ पे थीम्स है, डिजाइन है, कस्टमाइज है, विजेट्स है, मेन्यू है, ठीक है। और आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला हिस्सा खोल देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखा दिया मेन्यूज, प्राइमरी जो आपकी मेन पेज पे ऊपर होती है, फुटर जो सबसे नीचे होती है, सेकेंडरी मेन्यू आप कहीं भी लगा सकते हैं। मोस्टली दो होती है बस, मेन एंड फुटर या हेडर होती है, ठीक है। तो आप उसका नया नाम देखिए, यू वांट टू क्रिएट अ न्यू मेन्यू, लेकिन यहाँ लिखा होता है क्रिएट अ न्यू मेन्यू, आप इस पर क्लिक करें, फोल्डर नेम कौन सा आप लेट्स से मैं बोलता हूँ माय न्यू मेन्यू, ठीक है। यहाँ से मैंने मेन्यू क्रिएट कर ली, क्रिएट मेन्यू, बटन मैंने क्लिक किया, सेव हो गया, सेव हो जाएगा, ये सेव हो गया, ठीक है। अब इट इज जस्ट ब्लैंक, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। आप इसके अंदर पेज लगाएंगे, लेट्स से यू वांट टू कीप दिस
new arrival page, collection page and checkout page, suppose and shop page. ये 4 पेज पे आपने ऐड करने. Click add to menu. ये आगे इसके ऊपर क्लिक सेव मेन्यू. अब इसको आप अपने पेज पे कहीं पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं. कैसे तो देखिए ये भी बताता हूँ. ठीक है. अब ये मैंने इसमें 4 लिंक्स लगा दिए. अब इसको हम कैसे करेंगे? देखिए ये लिखा हुआ डिस्प्ले लोकेशन. इसको अपने कहाँ पे डिस्प्ले करवाना. ठीक है. ये लिखा हुआ डिस्प्ले लोकेशन प्राइमरी में, सेकेंडरी में, ऑफ द कैनवस, लॉग्ड इन अकाउंट और फुटर मेन्यू. लेट्स से सपोज ले जाए इसको फुटर मेन्यू पे नीचे ले जाए. सेव कर दें. अब लेट्स सी इट इज एडिड और नॉट. इसको चेक करते हैं. फोटो को लेके गया है नीचे आ जाइए. इसी समय ये नहीं